situation you can see that these days the factors which are affecting domestic and external affair, that line has blurred. Now with the world coming closer through technology, now you cannot distinguish this is a domestic matter or this is a external affair matter. All the issues are interconnected, interdependent, and affecting and being affected by each other. So in that scenario, Gandhian values are equally important, not for India, but also for the world, because the issue concerning the world are similar to all other parts of the country. Second thing, if you look at, there are certain crises which are coming in the present day world. They are not the crises which can be handled by any one country. Rather, these are issues concerning humanity. Maybe a climate change, maybe the other kind of scenario in the global system. And if you think that there is a collective assertion or there is a collective solution of these things, then naturally Gandhi's values come in between. Third, if you look at that in present day world, the world is moving to increase the hard power capability. Our race is going on. There is a still competition despite number of efforts for disarmament and armed control. Our race is coming. Day by day you are finding, whether it is Korea, whether it is America, whether it is Iran, whether it is any part, they are testing more and more sophisticated weapons. So here definitely comes the Gandhian ethics. How to control that arm race, you have to take a leaf from Gandhian ideology. Another problem that is witnessing today is the non-traditional threats. It is not only the armament threats which were witnessed today. In the last 2-3 centuries, we find the nature of threat has changed, transformed. You are finding cyber crime, you are finding terrorism, you are finding drug trafficking. Most of these problems which were not there, they are. But all these problems doesn't have a solution with one country. Now terrorism cannot be stopped by one country, drug trafficking cannot be handled by one country, climate change cannot be handled by one country, cyber crime cannot be. So for that also you need collective assertion, and here also comes Gandhian value, which is are of universal use, you can use it. Another problem we are facing today about the spillover impact of the globalization. Though there may be some positive impact of the globalization, the technology sharing or interconnectivity or technology or IT, we are coming together. But at the same time, you are also witnessing the harsh reality that rich are becoming more rich and poor are becoming more poor. So the gap between haves and have not is increasing desperately. And how to bridge that gap? What kind of ideology that can provide you the solution of bridging that gap? Here also you have to come near to Gandhi. So that kind of competition for this survival of the fittest kind of theory is also creating problem in the contemporary scenario. Another problem we are witnessing is the violation of human rights. Day on and day off, new kind of authoritarian trends, violation of human rights either by the state or by the terrorist or by the other organizations, that is also being witnessed throughout the world. So how to tackle that also, that needs concerted efforts. And if you look at, there is one alternative which was suggested, the liberal model or the Western model, their individuals are supreme, but in that model also political and the individualistic rights are procured, civil rights are procured, but nothing has been done about the economic and social rights. And if you take the second model, that is the communist, Marxist, or socialist model, there the violence is given supremacy because transformations come through the revolution. In that model also, despite economic emphasis, the authoritarian system of the state continues. So ultimately, in between the two, you have only the Gandhian model,
which is complementary and supplementary between individual and society. They don't compartmentalize individual and society. They don't divide the resources in some and deprive the other. Rather, they talk of the trusteeship, they talk of morality, they talk of values, they talk of small needs, and then that definitely take care of the human rights. And lastly, we can say we have seen in the pandemic scenario of the COVID-19 that most of the states which are producing this technology of vaccine, they are preserving millions and millions of vaccine for their population rather to take care of the poor people. So here also, the share and care idea of Gandhi comes in between. So what I mean to say is that if you look at the present global scenario, the crisis world is witnessing, the kind of problem world is facing, that needs some kind of new kind of thinking, new kind of idea, and those ideas can be come from Gandhian ethics or Gandhian values. How they can. Now I can explain the third argument, how these things can be handled through the Gandhian values or Gandhian ideas. You take the case of the arm race or arm competition which is going on. Gandhi never supported arm race. Gandhi was talking of disarmament to the extent that he say, if some other states don't go, you go unilateral. So he talks about unilateral disarmament. So that kind of thinking ultimately will serve the purpose. We have seen how under in the Soviet Union the Star War was going on before it was disintegrated. But Gorbachev came and they say we go for unilateral disarmament because there is no alternative in arm race. There is no end to it. It is a vicious circle, goes on multiplying, multiplying. So the only alternative is that you have to go unilaterally for that purpose. Similarly, if you look at the problem of the LPG or globalization, in that process also, the tough competition is going on about the survival of the fittest. So only those can survive which are having hold of resources. And the percentage of people who are holding resources are very few and large number is deprived. But Gandhi gave a concept of trusteeship, that you cannot take all resources together. Gandhi talks about the sustainable development which we are talking today, that how this development process can be prolonged for a longer time, taking care of future generation. So this idea of sustainable development is basically related to Gandhian values of trusteeship, how we can have share in the new context. Third thing, if you look at there are certain problems which are of humanitarian nature. What I've given example of climate change, that cannot be handled by one country. Neither it is affecting one, it is affecting all, whether it is rich, whether it is poor. So for solution of that, we can also take leaf from the Gandhian ideas when say that earth has given for everybody's need, but not for everybody's greed. So that kind of the greed we have to leave it. Small is beautiful, what Schumpeter has said. That idea is also taken from the Gandhi. So this kind of problem which are witnessing and which may create problem of global warming and climate change in throughout the world, and many countries may face that kind of crisis to the extent that they can be in the seas. So for that also you need Ghanaian thinking. Similarly, about the non-traditional threats, when you are talking of terrorism as the main cause, but Gandhi said how to transform. Gandhi did not restrict to mere certain laws and rules. Gandhi said you have to transform the soul of the person. Those who are doing bad things, how you transform their soul. So similarly, if you want to stop terrorism for times to come, definitely you have to think about how you can transform their thinking. Without transforming thinking, it is very difficult to handle such kind of non-traditional threats. Similarly, about the problem of human rights, as I've given, neither the Marxist nor the liberal have the solution. It is the Gandhian value of coexistence of the individual and society put together that provides the real solution. And then people say
that states are always governed about the national interest and politics is struggle for power. How you can restrict that? Here also, Gandhi came to, because he always supported the peaceful coexistence. That means enlightened self-interest. Interest of the state can be procured, but also interest of the others be taken care of. So Gandhi supported the Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. So how you can submerge all the people together, irrespective of the nation, irrespective of citizenship, irrespective of race, irrespective of religion, then you can do that. And then this kind of, and finally, if you take the post-COVID scenario also, which I referred, here also you cannot progress until, because that COVID, if some part is left without vaccination, the other will definitely affect. Because today world is interconnected, interdependent, and all are having traveling facilities go here and there. So you have to think of the price vaccination for all humanities. That is why India is launching Maitri vaccination, that exporting vaccination not only to develop but even to the developing, even to the poor. So WHO is also talking about. So all these measures, all these crises which we are witnessing today can be resolved through the Gandhian practice. So Gandhian values need to be inculcated or need to be developed. Otherwise, you cannot. So Gandhi is not only relevant for India's student, rather Gandhi is relevant for the global scenario today. So that is why I can conclude that Gandhi provides an alternative to all available ideologies for peace, because no other ideologies is so comprehensive and so conducive to the present day scenario, that they can, whether it is a liberal, whether Marxist, whether globalization, whether postmodernism, all have different kind of problem. But it is the Gandhian ideology which doesn't clash with anything, and they can provide an alternative to peace. Second thing, that is why UN has ultimately accepted the Gandhi 2nd October as a non-violence day, that the world could survive through non-violence and not through the violence. That is the key tag of the today's time. And also the world today, whether in technology term, whether economic, whether social, is interdependent. Nobody is self-sufficient in itself. You have to borrow something, you have to export something, you have to import something, and that can be possible only if you have a ideology of sharing and caring. Another thing is that for humanitarian crisis also, the collective wisdom of the people is required. Not the one nation can resolve the problem, rather the collective wisdom of all. And even if you look at the issue of security, present day security is not confined to the territoriality or border alone. Rather, now people start talking of human security. And when you talk of human security, that is a very comprehensive, including your territory, your border, your economy, polity, society, even environment, climate, everything's a part of that. So that kind of human security can be conceived only by the application of the Gandhian ideas. That is why I can recommend, or I can say with emphasis, that need is to exchange, enlarge, spread Gandhian values and develop the Gandhian culture for peace. Because without development of that kind of culture, without development of that kind of value, world cannot survive for a longer time. So need is to educate on Gandhian, and this such kind of activity, such kind of seminar organized by all the three people, I congratulate them that they are spreading the Gandhian value in a very positive manner. They are inculcating these values to the future generation of the students and teachers. Through that, a mass movement can be developed about regarding the welfare of all the humanity and upholding the Gandhian values. So the time is not just to criticize or ridicule or reject Gandhi, rather is to understand Gandhi, to read Gandhi, to enlarge Gandhi, to apply Gandhi in the present day context scenario. So what Gandhi has told, it was fine. What Gandhi did was fine, but how apply these Gandhian values in the present context,
This is the responsibility of all the teachers, all the students, all the well-wishers, all the believers in Gandhian faith. So present time he is passing through such crises in which Gandhi can become the only alternative. And that is why we have to hold such kind of activity. So once again, I am thankful for these institutions for providing me opportunity to share my random thoughts this morning. Thank you very much. थैंक यू सर. Thank you. बहुत ही अच्छा गुरु जी के माध्यम से जो हमें मार्गदर्शन गांधी जी के विचारों को लेकर और आज के समाज में जो आवश्यकता है, जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसे सार्थक और सधे हुए विचार आज हमें उस प्रासंगिकता को, उस महात्मा गांधी जी की और एक बार फिर से पुनः लौटने की ओर प्रेरित कर रहे हैं. तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर RS यादव जी का कि अपने कीमती समय जो हमें प्रदान किया है. हम तहे दिल से गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं. सीधे ही प्रोफेसर आशु जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारा गांधी जी के संदर्भ में जो आज का विषय है गांधी चिंतन एवं आजादी के विभिन्न आयाम, उस पर हमारा मार्गदर्शन करें. प्रोफेसर आशु जी. नमस्कार. थैंक यू सर. डॉक्टर राजपाल सिंह जी, प्रिंसिपल गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला. Dr. Dharamapal ji, founder OSCA, Professor Deepika Gupta ji, Dean, Social Sciences and Chairperson of Department of Political Science and Public Administration, Vikram University, Ujjain. Keynote speaker, Professor RS Yadav ji, Emeritus Professor, former Dean and Chairman of Department of Political Science, Kurukshetra University, Kurukshetra. Dr. Rakesh Kumar ji, convener. Dr. Parvesh Kumar ji, coordinator, and Dr. Virinder Chavre ji, coordinator of this webinar, and other colleagues and dear friends. Before starting my talk, I would like to express my deep sense of gratitude towards the organizers, especially Dr. Rakesh Kumar ji, who has given me this opportunity to speak before Galaxy of Scholars, and I'm very thankful to all the participants for giving their ears to share my views on Gandhi Chintan एवं आज़ादी की विभिन्न आयाम. When I saw the poster of this national webinar, I was thrilled to see our keynote speaker, Professor RS Yadav's name and photo. So there is a reason behind my happiness. As a renowned political scientist and down-to-earth person I have ever met on this planet, and my double thanks to organizers for inviting me to be part of this webinar and to listen him again talking on Gandhi, relevance of Gandhi. So सभी को गांधी जयंती की हार्दिक बधाई. Lot of has been said by Professor Yadav and Dr. I don't remember his name, other speaker who has introduced us. So little has been left for me, but will love to share my views to pay tribute to Father of the Nation. As we all know, Gandhi's profuse writings, speeches and talks cover every conceivable aspect of Indian life of his time, as well as present world is to be understood in the real essence. So I would like here to mention again that the best suited solution for all the problems of contemporary world, especially after post-COVID-19, is to follow Gandhi's principle, which Professor Yadav has said very clearly and very forcefully. And we also witnessed this during this period of COVID-19. So we know that the world is in the grip of the technology, which has entered in every sphere of life. Social media has ended all evening gossips and even long discussions we used to have at our workplace, at any other place, and we used to discuss a lot of current issues, latest issues, and trying to bring out some solutions also. So this type of things has taken the place by mobile phones, which has made the people to lose the eye-to-eye contact with each other. Now Zoom, Cisco Web, this Google Meet, etc., they are synonymous name for the 3 to 4, 5 years child for attending their classes.
Again, I would like to bring it to the notice of gathering that the capitalists are winning psychological gains by providing freemium models and changing the habits of the people. They are shaking the very foundation of the world. This is very alarming situation. So a lot of questions come up in my mind also, and I hope you on your mind also, that what are we doing to build up the society? It's really a very serious question these days. The possible answer or solution to these questions and situations to educate people in every essence is required. And with the help of these seminars and webinars, which you have organized or other institutions are organizing, with this we can sensitize and inculcate the principles and the efforts made by our freedom fighters to get freedom at the cost of their life, and we made them to really apply these principles which were laid by them and practiced by them, and to be practiced by us in our daily life, and not to make it them a mere one-day celebration. So today we are not only celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi, we are also celebrating India's second Prime Minister Lal Bahadur Shastri's birth anniversary also. And above all, today we are also celebrating the International Non-Violence Day. So few would question here that the notion that Mahatma Gandhi was one of the 20th century's transformative political and spiritual leaders. Among his numerous outstanding contributions, Gandhi is rightly credited with pioneering satyagraha, resistance to tyranny, though mass civil disobedience, and vocalizing a transcendent message that helped the Indian Congress acquire independence from the British in August 1947. So Gandhi was primarily a Karam Yogi, a man of activity. His activity was formally established on a firm perspective. This perspective grew in Gandhi's young psyche as an energy for truth, gradually developed into a forceful, free, retaining supplements from the best religio-philosophical frameworks on the planet. So grounded on the Advaita Vedanta philosophy of the unity of such exists, he distinguished definitely reality with God. Nature in this manner isn't an item to be abused, yet it resembles our own body, our own mother, that should be dealt with. Human beings, regardless of their race, caste, color, or gender, are all God's will. His vision for India's future was highly unorthodox. In Gandhi's realized state, there would be no representative government, no constitution, no army or police force. There would be no industrialization, no machines, and certainly no modern cities. There would be no capitalism, no communism, no exploitation, and no religious violence. Instead, an independent nation, Indian nation, would be modeled of the India of the past. So Gandhi wanted to build a society based on cardinal virtues of justice, peace, and equality. He stood as a great political and social reformer and felt that India has to be strengthened from its very roots. The most important thing I personally admire is his experiments in simple living and high thinking. While talking about Sarvodaya, that is the welfare for all, he said and believed that earth provides us enough for our needs, but not for our dreams, is extremely apt to do. Gandhian philosophy is a double-edged weapon. Its objective is to transform the individual and society buildings in accordance with the principles of truth and non-violence. It is apparent that Gandhi's philosophy has much in common with several Western philosophies which uphold the ideal of a more just and equitable society. His thought is equally a philosophy of self-transformation. For the individual, self-transformation is attempted with carefully rather than with urgency. He viewed his own life as a process of development undertaken one step at a time.
He saw the need to continually experiment with truth in whatever field in order to come to see the truthful path. The individual's task is to make a sincere attempt to live according to his principles. They include resisting injustice, developing a spirit of service, selflessness, and sacrifice, emphasizing one's responsibility rather than rights, self-discipline, simplicity of lifestyle, and attempting to maintain truthful and non-violent relations with others. So, Sarvodaya is the term meaning universal uplift or progress of all. The term this was first coined by Mahatma Gandhi as the title of his 1908 translation of Johann Ruskin's tract of political economy unto this last, which was extended from three central tenets. That was the good of the individual is contained in the good of all. A lawyer's work has the same value as the barber's in as much as all have the same right of earning their livelihood from their work. All life of labor, that is the life of the tiller, of the soil, and the handicraftsman is the life worth living. For these three tenets, Gandhi said that the first of these I knew, the second I had dimly realized, the third had never occurred to me. So unto this last made it clear as the daylight for me, for Gandhi, and the second and the third word contained in the first. So I arose with the dawn, ready to reduce these principles to practice, and he did that also. So, as the base of the Gandhian social order in religious or spiritual, economic, and political questions are seen from the model of humanistic perspective. The welfare of beings, not of the systems or institutions, is the ultimate consideration on a deep respect for Mother Nature, compelling an economic system based on the preservation of the natural environment. The practice of comprehensive self-reliance by individuals, villages, region, the nation. The minimized days of competition and exploitation in almost all sectors, and instead the encouragement of the cooperation. So production on the basis of the need rather than greed, eradication of poverty. Then recognition of dignity of labor and the great purity of rural life. The last one, absence of oppression on the basis of race, caste, class, language, gender, or religion. So I would like to repeat here that the main principles, philosophies of Gandhi's are first, very important one is the non-violence. So Gandhiji said non-violence is the greatest force or at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of men. So non-violence means good will towards others, doing well towards others. It is not a weapon of weak and coward. Ahimsa means the largest love, greatest charity. So according to Gandhi, non-violence does not mean meek submission to the will of the evildoer. It is the soul force or truth force. Non-violence is regarded as the highest law of humankind. Now I'll talk about the Satyagraha. So Satyagraha campaign is undertaken only after all other peaceful means have proven ineffective. So at its heart is non-violence. An attempt is made to convert, persuade, or win over the opponent. Now I'll come and talk about Gandhi's economy. This is very important also. So the Mahatma Gandhi had his own approach to the economic problem of India. He did not essentially believe in promoting large-scale industrialization. His focus was on small-scale industries, cottage industry. So Gandhian economy is still relevant to our time. He was not against machinery as such. He was afraid that use of machinery on large scale would result in technological unemployment. He extended Ruskin's concept of
equality of wages to all kinds of labor and equal distribution. The mad race in industrialization and urbanization has resulted in pollution of environment and Gandhian abundance of luxurious life. In India, economic development has been mostly confined to the urban conglomerates. In the process, the rural India that comprises 700 million people has been given short shrift. So Gandhiji's philosophy of inclusive growth is fundamental to the building of resurgent rural India. He believed in production by masses rather than in mass production, a distinctive feature of the Industrial Revolution. He talked about the villages are the soul of India. Mahatma Gandhi had commented that if villages perish, India would perish too. So, destiny of India lies in villages. Gandhi did not approve of the Western urban civilization for the entire world. He said that a big country with a teeming population, with an ancient rural tradition, which has hitherto answered its purpose, must not copy the Western model. So what is good for one nation situated in one condition is not necessarily good enough for another differently situated. So in Gandhi's scheme, in the structure is composed of innumerable villages. There are ever widening, never ascending circles. Life is not like a pyramid with the apex sustained by the bottom, but it is like an oceanic circle whose center is to be the individual, always ready to perish for village and later ready to perish for its circle villages. So Gandhi hoped the individual being pure sacrifices himself for the family, the later for the village for the district for the province for the nation for all. A hope in consonance with his notion of oceanic circle. According to Gandhi, the rural and urban areas have complementary relationships. They are now two sectors representing two groups of classes of people pitted against each other. Gandhi felt that the strengthened and economically sound rural economy would revitalize Indian economy. So he stated, you have therefore to be rural-minded. Before you can be non-violent and to be rural-minded, you have to have faith in the spinning. So he felt that small communities molding their life on the basis of voluntary cooperation would be the best environment for the extinction of exploitation. The regeneration of India, he felt, to be impossible without rural reconstruction. That's why he has given the slogan "Back to Villages." He gave a call everybody to go and work in villages. So to develop rural economy, rural industry and rural skill. In small self-sufficient villages producing mostly for their consumption, a peaceful life devoted to the pursuit of democratic values was possible. So big urban concentrations, on the other hand, result in the monopolization and accumulation of wealth by a minority. Then I'll talk about the decentralization democracy. So democracy depends upon the equality of all human beings. The right to participate in social and political transformation to live in dignity. Political decentralization means dispersal of decision-making powers accompanied by delegation of required authority to individuals or units at all levels of the concept of decentralization occupies paramount importance in Gandhian philosophy. Gandhi wanted political power to be distributed among the villages in India. He preferred the term Swaraj to describe what he called true democracy. That democracy based upon the freedom he calls Panchayati Raj. Panchayati Raj or the village soul. So according to Gandhian democratization, political power is the basic requirement
for the डिनाई success करने of एक्चुअली स्पेस नहीं है ना मैडम For him, a democratic, अब क्या decentralized ज्यादा लोग जुड़ democracy रहे based हैं on villages चलो आएगा तो हम in which कोशिश करेंगे voluntary क्या ट्राई करो cooperation गीता is का the condition of देखिए dignified and एक peaceful मिनट existence is there. पेपर है आप So देखो Gandhian क्या democracy थोड़ा is बहुत still relevant in India. It is चलो clear from चलो the भेजते रहो आप 73rd and मैं लिख रहा 74th हूँ आपका नाम constitutional amendments कोई नहीं वो तो of पता है Indian constitution हम that आपको is 5 related मिनट दे only देंगे with the मैडम 5 से rural ज्यादा नहीं चाहिए administration टाइम of India. So one हाँ मैंने significant provision of this amendment is the decentralization of power upon the rural level. So it has already been implemented in India in 1992. Now I'll talk about this education system. The education system proposed by Gandhi is called the basic education. He mainly aims at the education in mother tongue, and education should be make the children skilled and independent. More than ever before, Gandhiji's teachings are valid today when people are trying to find solutions to the rampant greed, widespread violence, and runaway consumption, consumptive style of living. So education through medium of the strange tongue breaks the concordance which should exist by mother tongue. Foreign languages made the kids crammers and imitators, unfit for original work and thought. Gandhi said, literacy is itself no education. I would prefer the child education by teaching it useful handicraft. So it perpetuates in radical restructuring of the sociology of the school knowledge in India, in which the literacy of the lower caste, such as spinning, weaving, leatherwork, bookbinding, etc., would be made central. So Gandhi's educational system got minimum attention. It aimed all-round development of human personality. So for Gandhi, the true development of head, heart and hand are necessary for a satisfactory system of education. Gandhi wanted to construct small, self-reliant communities with its ideal citizens being all industrious, self-respecting and generous individual living in a small cooperative community. So the next topic I'll touch about is the religion. So in the religious context, Gandhi emphasized that communal unity has to be based on equal respect for all religions. Everyone, Gandhi said, must have the same regard for the faith as he had for his own. Such respect would not only remove the religious rift, but lead to a realization of the fact that religion was a stabilizing force, not a disturbing element. So Gandhi's basic axiom was that religion, since the scriptures of all religions point in the direction of goodwill, openness, and understanding between men and women, men and men, and between the community and the community. So his message of love and compassion, his plea to search for unity in the midst of diversity, his endless endeavor to achieve unity of hearts is the heritage he bequeaths to posterity. He preached the gospel of Sarva Dharma Samanta. He used true religion is a universal belief in the one and only God. So the world is fast growing out of the dogmas and creeds which have so sickened it that it has become confused and has begun to deny the very existence. So, regarding the concept of the politics, Gandhi stands for the people's politics and not the party politics. For him, politics opens the door of service, not for using power. He plays partyless democracy. He resists injustice and exploitation and thus glorifies the politics. For Gandhi, politics is moral problem of value. Gandhi's political thought stemmed from different traditions, but he had not agreed into with any of them. Gandhi did not ever to be an original thinker. Unless the moral and spiritual qualities of the people are appropriate, the best of political system and constitution will not work. His political idea based on the ethical and spiritual grounds rising democratic values.
So at present, we see that politics is routed, deceit and dishonesty, and is bound to create greater deceit and greater dishonesty. Hate must generate hate. Thus, there is a need of moralized politics. So Gandhi's prophetic emphasis is there is no politics devoid of religion. He always used to put emphasis on his often repeated saying that his politics barefoot of religion is a death trap. So to conclude, at the last, I would like to say that Gandhian philosophy is not simultaneously political, moral, and religious. It is also traditional and modern, simple and complex. So there is much in it that is not at all new. That is why Gandhi could say, "I have nothing to teach the world. Truth and non-violence are as old as hills." After many years of his martyrdom, Gandhi is no more relevant on the global level than before. His relevance in different fields is unquestionable, unchallengeable. For the very survival of the human being, it is imperative on our part to act upon his advice, because only on his relevance we shall survive together, or if we fail in our venture, we are bound to perish together. So he advocated non-violent culture and civilization, which could only be built on self-reliant, self-trained knowledges. His earnest desire was to see rural millions as the formidable partners of India's polity and economy. So he took life as one entity, and his concern was to develop life as an integrated concept, simple but richer in quality in all spheres concerning economic, social, political, and moral development. So the message, the what. We have the question, or we have things that what is the best message of Gandhi in the contemporary world? It would be the earth provides 2-3 quotations that said by the Gandhi. The earth provides enough to satisfy everyone's needs, but not everyone's greed. So love is the strongest force the world possesses, and non-violence is a weapon of the strong. And lastly, respect all religions. Thank you very much for listening to me fully and patiently. Thank you. थैंक यू मैडम जी, थैंक्स ए लॉट। आपके जो विचार हैं हमारे लिए मील का पत्थर साबित होंगे, और ख़ास तौर पे जो परिदृश्य चल रहा है वर्तमान का, ऐसे में जो आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं आपके नेतृत्व में, जो ख़ास तौर पे यूथ की अगर हम बात करें तो उनके लिए बहुत ही एक लाभप्रद जो आपके शब्द हैं। हमारी पूरी का पूरी कोशिश है कि हम भी अपने जीवन में इस तरह के विचारों को आधार बनाएं और गांधी जी का जो आदर्श अपने जीवन में उनको स्थापित करें, तभी उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर प्रवेश कुमार जी से कि वो आगे की कार्रवाई प्रवेश जी। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू मैडम आशु प्रसिद्धा जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं मैडम दीपिका गुप्ता जी को नमस्कार करते हुए आगे की कार्रवाई को शुरू करता हूं। मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रोफेसर दीपिका जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया कि हम आपके साथ मिलकर जो है गांधी जयंती के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन करें। और मैडम ने बिल्कुल सहज स्वभाव से अपनी अनुमति प्रदान की, और जो कि आज हमारे लिए इतना अच्छा वेबिनार जो है अभी चल रहा है, पूरे देश से काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि आप जो है हमें ज्वाइन कराएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे इससे पहले प्रोफेसर यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय में और वर्तमान परिदृश्य के बारे में जो विचार रखे हैं, और मैडम आशु प्रसिद्धा जी ने अपने विचार रखे हैं कि वर्तमान में जो गांधी जी हैं उनको मैं ये समझता हूँ कि हर क्षेत्र में हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें, उसमें भी हम देखते हैं कि चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे सफाई का अभियान हो, और अभी
नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम आर्थिक स्वच्छता की भी बात जो है हमारी सरकार आज कर रही है, उसके विषय में गांधी जी पहले ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है हमें दे चुके हैं, लेकिन हम जो है गांधी जी के विचारों को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। उसमें हम अपनी कमी देखते हैं। अगर बहुत ऐसी समस्याएं हैं कि अगर उनको हम अपनी जीवन शैली में अपनाएं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत समस्याओं का हम निवारण कर सकते हैं। मैडम दीपिका जी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में एज ए चेयरपर्सन, एज ए डीन और यूनिवर्सिटी की जो टॉप जो कमेटीज होती हैं उनमें जो है मैडम का जो है नेतृत्व तो हमेशा अग्रणीय रहता है और मैडम सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रहे हैं डिपार्टमेंट में। और मैडम के नेतृत्व में मैडम को धन्यवाद देना कि मुझे भी मैडम का जो है सानिध्य प्राप्त हुआ है। और आज हम मैडम दीपिका को सुनना चाह रहे हैं, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अब सीधा मैडम दीपिका जी को जो है स्वागत करता हूं कि वो आएं और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित करें। मैडम दीपिका। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज के जो प्रमुख हमारे प्रिंसिपल हैं राजपाल सिंह जी, गांधी मेमोरियल नेशनल पीजी कॉलेज अम्बाला के, ओस्का की टीम और हमारे विभाग के साथी, और आज के जो प्रमुख वक्ता हमारे रहे, दोनों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, प्रोफेसर RS यादव और मैडम आशु पसरीचा, इसके चीफ पैट्रन धर्मपाल जी, कन्वेनर राकेश कुमार जी, कोऑर्डिनेटर परवेश कुमार, को कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र चावरे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चंद्रपाल पुनिया जी। मुझे भी धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि आपने ये आजकल हम देखते हैं कि सब जगह कोलैबोरेशन की बात चल रही है। अभी हम लोगों का नेक का भी इवैल्यूएशन है, उसमें भी यही बात है कि आप कोलैबोरेट करें। तो यदि हमारे पास ऐसे विद्यार्थी, ऐसे संस्थान हैं जिनसे जुड़ के हम काम कर सकते हैं तो निश्चित ही ये बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम साथ में मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी की 152वीं जयंती है और इसमें जो हमारे संदेश हैं, हम जो आज की पीढ़ी है, हम इतने अब तो कहना चाहिए कि 60s में आ चुके हैं, तो हम लोग के साथ तो गांधी के विचार बचपन से रहे थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे हम गांधी के विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज का आयोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज़ादी का भी हम 75वां साल मना रहे हैं और आज़ादी के जो मायने हैं वो बहुत अच्छी तरह से आज की जो युवा जनता है उसके सामने रखे जाने चाहिए कि किस तरह से गांधी जी ने ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कही, विदेश के जो दास्ता थी उससे आज़ाद होने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तो नायाब था ही। नॉन वायलेंस, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अहिंसा के जरिए हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने ये जो एक बहुत बड़ा पाथ बनाया, जिसको कि हमारे की स्पीकर्स ने भी बताया इतनी अच्छी तरीके से कि किस तरह से आज आर्म्स रेस है या किस तरह से आज टेंशन है दुनिया में, उसको दूर करने के लिए हमको वॉयलेंस को छोड़कर, और वॉयलेंस भी सिर्फ हिंसा, सिर्फ विचारों की भी हिंसा को हमको त्यागना है। तो इतना बड़ा संदेश आज गांधी का है जो सबसे पहले प्रसारित किया जाना चाहिए। उस अहिंसा के साथ ही हम शायद बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सी जगहों में आसपास भी हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान का हम देख रहे हैं कि वो किस समाज की ओर जा रहे हैं। ऐसी जगहों पर गांधी के विचारों को यदि प्रसारित किया जाए तो निश्चित ही
हमको लगता है कि बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। तो एक ये जो संदेश है हमें, मुझे लगता है बार बार इसको प्रसारित करना होगा। उसी तरह से जो उनकी आजादी की संकल्पना है, ना सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात उन्होंने की है, बल्कि सामाजिक आजादी की भी बात कही है। मैडम ने अभी बहुत अच्छी तरीके से हमको सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से समाज में जो भेदभाव है या समाज में जो ऊंच नीच है उसको खत्म कर देना है। आपने जो अनटचेबिलिटी के बारे में बात कही, आज भी हमको इसके प्रमाण मिलते हैं और हिंदुस्तान में गांधी जी के ही प्रयासों से हमारे संविधान में भी इस चीज को शामिल किया गया और बहुत से प्रयासों से आज हम कुछ बेहतर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी हमको जरूरत है कि इस चीज को और आगे बढ़ाएं। उसी तरह से दूसरी और जो बुराइयां हैं, जैसे मद्य निषेध की बात है, स्मोकिंग से दूर रहने की बात है, शराबबंदी की बात है, वो उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि समाज के जैसे बहुत सारे आजकल उन्होंने सिर्फ शराब के बारे में बात कही थी, तब वो ड्रग्स वगैरह का इतना चलन नहीं होता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, अभी आज मैं देख रही थी न्यूज़पेपर्स में कि आए दिन कितने सारे ड्रग्स जो हैं, हेरोइन और अलग अलग तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो पकड़ी जा रही हैं। तो ये एक फैलाव जो है होता जा रहा है। आज का हमारा युवा इसमें जकड़ता जा रहा है। एक बार बताया था, बहुत सारे लोगों ने भी इंगित किया था कि पंजाब में 70% जो युवा है वो ड्रग्स ले रहा है। तो इन सब से हम कैसे दूर हों, इसके लिए हमको कहीं ना कहीं जो संयम की बात कही है गांधी जी ने, उसको हमारी युवा पीढ़ी को वो संदेश देना ही होगा। नहीं तो ये जो जकड़ है हमारे युवाओं की नशे की लत की ओर, वो बढ़ती जाएगी और हमारा समाज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा युवा जनता आज भारत में है और इसलिए सिर्फ नंबर में युवा है उससे काम नहीं चलेगा, हमको उनको स्वस्थ बनाना होगा, सक्षम बनाना होगा। तो इसके लिए भी गांधी के विचारों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। फिर स्त्री और पुरुष के जो भेद को उन्होंने दूर करने की बात कही, स्त्री के एजुकेशन की जो बात कही, उसकी भी बहुत आवश्यकता हमारे हिंदुस्तान में है। आज 75 वर्ष के बाद भी जो हमारी स्त्रियों का साक्षरता दर है वही आज बहुत कम है। तो इसकी ओर भी बहुत प्रयास करने होंगे। स्त्रियों को बहुत सारे अभी भी प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ रहा है, उनके लिए भी हमको काम करना होगा। तो जो ये सामाजिक आज़ादी हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम इस तरह के व्यवहार को अपने सामने रखेंगे, जनता को ये सिखाया जाए कि किस तरह से संयम से रहकर, सादगी से रहकर अपनी आकांक्षाओं को कम करते हुए हम बेहतर समाज का निर्माण करें। उन्होंने स्वयं के दोषों से भी आजादी की बात कही थी। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो था वो उनका सर्वोत्तम उदाहरण है कि किस तरह से व्यक्ति को स्वयं के दोषों से दूर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने आजादी की एक समग्र कल्पना की है और उसको हमको व्यवहार में लाना होगा, तभी शायद हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। तो इस तरह की जो संकल्पनाएं हैं उनको हमको आगे बढ़ाना होगा। अभी जैसे बहुत से सरकारें भी इस ओर काम कर रही हैं। आज ही मैं देख रही हूँ कि ऐड आया है कि किस तरह से गरीबी को हटाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, और जब तक गरीबी है तो हम समाज में जो और बुराइयां हैं उनको देखते ही रहेंगे। तो गरीबी को हटाया जाना भी बहुत जरूरी है, और अपनी जो खुद की समस्याएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम अपने से नीचे के व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी समस्याओं से भी हम दूर हो सकते हैं। जो एक कोट है महात्मा गांधी का बहुत अच्छा, वो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि जब कभी आप दुविधा में हो या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्खा आजमा कर देखिएगा। अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइए जिसे कुछ लाभ होगा।
क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी? बस इतना सोचते ही आपको सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो किस प्रकार आप ऐसा उदाहरण रखें, क्योंकि गांधी यही कहते थे ना कि उदाहरण रखिए सामने। तो आप स्वयं के उदाहरण से दूसरों को समझाएं, तो शायद सामने वाले को ये जो हम संदेश देना चाहते हैं वो बेहतर रूप में समझ में आएगा। बहुत सारी बातें हैं गांधी के बारे में, हमारे वक्ताओं ने, स्पीकर्स थे, उन्होंने रख दी हैं। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी सारी टीम को कि उन्होंने पैटर्न के रूप में मुझे जोड़ा, मेरे विभाग को इस आयोजन से जोड़ा, बहुत अच्छे हमारे वक्ताओं को सुनने का मौका दिया। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। और माइक जो है अब परवेश कुमार को वापस दी। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और विक्रम इंस्टीट्यूट जैन का भी, और मैं अपने प्राचार्य महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर हमें इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं उनके लिए हमें हमेशा जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पहली कलम से इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां रहती हैं कि आप जो हैं आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं। तो मैडम धन्यवाद। जिस प्रकार से मैडम ने वर्तमान स्थिति के बारे में हमें अवगत कराया कि वाकई में गांधी के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम भारत ही नहीं, अगर विश्व स्तर की अगर हम बात करें, विश्व शांति के अगर दूत के रूप में गांधी जी को जाना जाता है, बशर्ते हमें अपने जो स्वार्थ हैं उनको छोड़कर तब जाकर हम गांधी जी को फॉलो कर सकते हैं। कहीं थोड़ा बहुत अगर हम 1-2% भी गांधी के आदर्शों को अपनी लाइफ में अगर शामिल कर पाए, तो मैं ये समझता हूं कि आज जिस प्रकार की समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है उन समस्याओं में कहीं ना कहीं हम कमी कर सकते हैं। तो मैडम मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इतने बहुमूल्य विचार जो हैं हमारे सामने रखे हैं। और अभी विक्रम इंस्टीट्यूट जैन के फॉर्मर चेयरमैन और डीन प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी भी जो है लगातार शुरू से जुड़े हुए। मैं चाहूँगा कि शर्मा सर भी 5 मिनट के लिए जो है हमें अपने आशीर्वचन दें ताकि हमारा मार्गदर्शन करें। मैं अब सीधे गोपाल कृष्ण शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार साझा करें। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। आप लोग कुछ दिख नहीं रहे, मुझे गड़बड़ हुई। एनीवे, तो आयोजक संस्था की त्रयी प्राचार्य महोदय प्रोफेसर दीपिका गुप्ता, प्रवेश और RS यादव साहब दिख नहीं रहे मुझे। बहुत अच्छा आपने आयोजन किया प्रवेश, बधाई देता हूँ मैं आपको। और अलग अलग वक्ताओं ने, आशु जी ने, RS यादव साहब ने, दीपिका ने, गांधी, क्योंकि विराट है गांधी का सारा संसार, बहुत विराट है, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर गंभीरता से बातचीत की। मुझे अच्छा लगा क्योंकि गांधी अध्ययन केंद्र से भी जुड़ा रहा हूँ कई सालों तक। मुझे बस केवल एक ही चिंता सताती है रात दिन कि जिस धरती पर गांधी हुए हैं और अहिंसक प्रयोगों के माध्यम से जिस गांधी ने इस देश को आजाद करवाया है, गांधी, उसी गांधी के बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को समझा रहा है कि वहां पे गांधी हुए थे, ध्यान रखिए आप उनका। हमारा समाज अहिंसक समाज है, हमारी सभ्यता अहिंसक सभ्यता है, और हमारी उस अहिंसक सभ्यता का सच्ची अभिव्यक्ति थे गांधी। गांधी कहते थे मेरा कुछ भी ओरिजिनल नहीं, सब मैं भारत से लिया है, और सारा ग्रहण करके उन्हें सारे प्रयोग जीवन भर किए और ऐसे विचार दिए जो आज नहीं आने वाले शताब्दियों तक भी रिलेवेंट रहेंगे, प्रासंगिक रहेंगे, बल्कि दुनिया को सुंदर और बेहतर बनाने के सारे नुस्खे उनके चिंतन में हैं, उनके विचारों में हैं, है ना। आप देखिए कि दुनिया नॉन वायलेंस मनाती है डे 2 अक्टूबर, अहिंसा के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, लेकिन अपने ही समाज में गांधी जैसे अजनबी से दिखाई देने लगे हैं। हत्यारों को प्रासंगिक बताया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है, और हम बात भी कर रहे हैं, हम उनका नाम भी लेते हैं, हमारे सारे कर्णधार गांधी का नाम जरूर लेते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो,
पर इन कर्णधारों ने आजादी से लेके अब तक, मैं अभी ताजा बात नहीं कर रहा हूं, मैं आजादी से अब तक की बात कर रहा हूं, यदि उनके विचारों पर थोड़ा सा भी चलने की कोशिश की होती तो ये देश और ये दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया होती, मेरा आज भी मानना है। आप जानते होंगे कि सारी दुनिया के नोबेल लॉरियट से इकट्ठे हुए और उन्होंने गांधी और मार्क्स दोनों के चिंतन के पॉजिटिव मसलों को इकट्ठा करके कहा कि इन दोनों के चिंतन में सारी दुनिया की सारी समस्याओं के समाधान मौजूद है। आज हम हिंसक समाज हो रहे हैं, पेंडेमिक हो रहे हैं, बीमारियां हो रही, तरह तरह की उस स्पर्धा ने, पेंडेमिक क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है लगातार, तो स्पर्धा है, सत्ता को हासिल करने की स्पर्धा। हम ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ 5 लोग 10 लोग मिलकर पूरी मुल्क की पूंजी पर कब्जा किए बैठे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अंतहीन दौड़ है पूंजी बढ़ाने की गांधी के देश में, और उसी गुजरात की धरती से, मतलब सारे कंट्रडिक्शन दिखाई देते हैं कि उसी गुजरात की धरती से जहाँ जिंदगी गांधी ने अपनी बिताई है सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए, वहां पे एक कारपोरेट वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, मतलब जो डेमोक्रेसी को चला रहा है, जो देश की संस्थाओं को चला रहा है। तो परेशानी होती है सोचकर, किसी भी जागरूक नागरिक को परेशानी होती है। और ये जरूर है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से अप्रासंगिक किए जाने की कोशिशों को हम फेल कर पाएंगे, उनके प्रयासों को हम याद कर पाएंगे। और जैसा कि इस बच्चे ने कहा, प्रवेश ने, जो यहाँ रिसर्च करने आए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, विभाग में दूर से आके कुरुक्षेत्र से गांधी पर रिसर्च करने का उनका मन था, किया उन्होंने यहाँ दीपिका जी के साथ। जैसा कि उन्होंने कहा 1% या 2% भी हम स्वीकार कर लें, या जैसा दीपिका कह रहे हैं कि आप अपने अंदर से भी कुछ निकाल दें जो गड़बड़ है, काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसा कि समय मुझे दिया गया है 4-5 मिनट का, इतना ही कहना चाहूंगा कि वो विचार है, एक आदर्श है, मतलब वो सब कुछ है, सब कुछ, सारी समस्याओं का हल है उनके चिंतन में, सारी समस्याओं। चंद्रपाल तुम बोल लीजिए, क्योंकि वो इस देश की उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहती है धरती एक परिवार है, हमारा परिवार भी कर रहा है। धरती को परिवार कहने वाली महान सभ्यता के परिवार में गड़बड़ हो रही है, लिंचिंग हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है, वायलेंस हो रही है, एंड फॉर द सेक ऑफ पावर सब कुछ हो रहा है। झूठ आच्छादित है पूरे मुल्क को बुलाऊंगा एक बार कॉल, सत्य के साथ गांधी जिंदगी भर लड़ते रहे, सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, फिर चेयर यार इसी पे देख रहा है, और झूठ दिल्ली से चलता है, पूरे प्रदेश में फैल जाता है। नई टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, उनके विचारों को कुचलने के लिए भी, उनके विचारों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी। तो ये सब चीजें कष्ट देती है मन को, और हम सब सचेत लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, मैडम दीपिका से हमें आगे आना पड़ेगा अगर हमको अपने देश को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को बचाना है। ये विश्वगुरु बात में मेरा कोई यकीन नहीं है कि गांधी जैसा दुनिया को सबसे ज्यादा शिक्षा देने वाला गुरु हमारे पास है। आज भी पूरी दुनिया में उसकी मूर्तियां हैं, आज भी पूरी दुनिया में उसकी संस्थाएं काम कर रही है, पूरी दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। हम बस स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उनके चश्मे का उपयोग करके। शुभकामनाएं, बधाई आपको इसके आयोजन के लिए। प्रवेश सर को, डॉक्टर यादव को बहुत दिनों बाद सुनने का मिला, दीपिका जी को गांधी सुनने में अच्छा आनंद आता है। धन्यवाद सर। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे, जी आप स्वीकार करें। एक्चुअली अभी हमने एक सेशन रखा हुआ है, वो किसी कारण से सर मैं चाहूंगा कि आप उस सेशन को सर चेयर करें। उसमें 4-5 जो रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपने विचार रखेंगे सर। सेशन को आप सर चेयर कर लें। टाइम बताएं, टाइम बेस्ट है आपसे, टाइम बताएं। टाइम सर अभी बस शुरू ही कर रहे हैं सर, वो ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट के हैं, 5 लोग। चलिए हाँ सर, तो मैं सर नेक्स्ट जो सेशन की कार्रवाई के लिए गोपाल कृष्ण शर्मा जी उसको चेयर करेंगे, और मैं अभी डॉक्टर रमेश जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, वो आए और आप विचार रखें। ओके, हेलो, हाँ ठीक है। डॉक्टर रमेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? डॉक्टर प्रवेश, आई एम डॉक्टर विश्वजीत फ्रॉम डीएवी कॉलेज पुंडरी। अगर मुझे आप 2 मिनट दे सकते हैं? जी आप रखें अपने विचार सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें, टाइम का ध्यान रखें प्लीज। जी सर, जी ओके। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चेयरपर्सन एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मैं डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डीएवी कॉलेज पुंडरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। सर, आज का मेरा जो विषय है, महात्मा गांधी एक विचार। देखिए,
गांधी एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं। गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे अपने जीवन काल में थे। अक्सर गांधी जी के बारे में हम भारतीयों को यह भ्रम रहता है कि हम सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, लेकिन सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब तक हम गांधी जी से संबंधित साहित्य पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें गांधी जी के बारे में भ्रांति ज्यादा और सच्चाई कम है, उन बातों का ही पता लगता है। देखिए, आज हम सब मानते हैं कि हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय पर्व का मतलब यह है कि हम अपने गांधी जी के द्वारा जो दिए गए हमारे इतने आदर्श हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति उतार ले तो वह व्यक्ति गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेगा कि जो धरती पर जिस स्वर्ग की कल्पना की गई है वो स्थापित भारत के अंदर हो सकता है। लेकिन विडंबना ये है, हम सब लोग गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के विचारों को जानते हैं, लेकिन अपने हम दिनचर्या में अपनाते नहीं हैं। एक तो ये कारण है सर। दूसरा सर, मैंने गांधी जी पे पीएचडी की है डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। उस दौरान मैंने एक गंभीर बात पता लगी कि भाई गांधी जी के बारे में, गांधी जी को हम सब कहते हैं कि विश्व नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला, कितनी बार गांधी जी का नाम रिकमेंडेशन किया गया, कारण क्या रहा। इंटरव्यू में भी अक्सर यही पूछा जाता है कि गांधी जी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। तो सर, जब भी मैंने इस क्वेश्चन के कई आंसर मैंने अपनी तरफ से, लेकिन हर बार कोई ना कोई एक ऐसी चीज निकल कर आती जो मैं ये जान पाया कि ये शायद मुझे पहले नहीं पता थी। एक हम तो सिर्फ एक हमने जो साहित्य पढ़ा था, हमने उसके बारे में सिर्फ एक ही बात जानकारी मिली कि वो नस्ल का जो भेदभाव था अंग्रेजों का हमारे लिए, यही मेन मुख्य कारण था। उस वजह से हमें यानी महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। दूसरा, जो एजेंसी है नॉर्वे की, वो अंग्रेजों से प्रभावित थी। कहीं ना कहीं नस्लीय जो भेदभाव था वो भी गांधी जी के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी। अंग्रेजी जो साम्राज्यवाद था उसको वो चुनौती नहीं देना चाहते थे गांधी जी को विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार देकर। लेकिन सर, आज हम देखते हैं, चाहे गांधी जी के समय का भारत हो, वर्तमान भारत हो, इसमें जो मौलिक अंतर ये आया है कि उस समय हमारी जो आम जनता थी, हमारे जो राजनेता थे, वो गांधी जी के विचारों को न केवल सुनते थे, अपनाते थे, और गांधी जी ने जो बात कह दी वो उसको अपने लिए अनमोल वचन मानकर गांधी जी के बताए गए रास्ते पर उनके पीछे पीछे हो लेते थे। डॉक्टर पीटी शर्मा के अनुसार गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, चाहे वो भारत का पूर्व में आदमी है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, वो गांधी जी की भाषा भले ही ना समझे, लेकिन गांधी जी के विचारों को वो इस प्रकार समझता था कि गांधी जी जब आगे आगे होते थे उनके पीछे कारवां जुड़ता चला जाता था। और आम पिछले आदमी को जब हम ये पूछते थे, भाई आप किस आंदोलन में, आप किस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, वो ये कहते थे गांधी जी हमारे आगे हैं, और जो गांधी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, हम गांधी जी के बताए गए रास्ते पर या गांधी जी के पीछे हम चल रहे हैं। दांडी मार्च इसका एक उदाहरण है। जब दांडी यात्रा शुरू की गई, गांधी जी के अलावा 75 और लोग थे जो उनके साथ थे, लेकिन जब वो लास्ट में समुद्री मार्ग पर जहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया, वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए जिनको ये भी नहीं पता था कि गांधी जी क्या करने जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी जा रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं, क्योंकि 5-5 मिनट का समय दिया गया है, प्लीज मेरे पास कॉल भी है सर, मैं 5-5 मिनट का समय देगा। मैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी के जितने भी गुण हैं, वीरता का सर्वोच्च गुण है, वह कायरता की आड़ नहीं है, जिसको आज हम कायरता समझते हैं। हम सब गांधी जी से क्या जो सर्वोच्च गुण है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, को अपनाकर आज भी हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विश्वजीत जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार रखे हैं आप।
अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो तैयार रहें। अभी डॉक्टर रमेश जी अपनी अपना जो शोध का जो उनका जो टाइटल है उसके बारे में कृपया एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 मिनट से ज़्यादा ना लें प्लीज़, क्योंकि 12 बजे तक हमें ये कंक्लूड करना है, अदरवाइज़ ये फिर दिक्कत आ जाएगी इसमें। रमेश के बाद डॉक्टर कृष्ण जी तैयार रहेंगे और उसके बाद डॉक्टर कबीर तैयार रहेंगे। तो मैं सीधे अब डॉक्टर रमेश जी को बुलाना चाहूँगा, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में, कि वो अपने जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड अपने जो है विचार रखें। डॉक्टर रमेश प्लीज आप आएं। थैंक यू डॉक्टर प्रवेश। First of all, I congratulate to all the organizing members of this national webinar, and I am also thanking to GMN College Principal Management for inviting me on this great platform. Today, I have been asked to complete my topic within 5 minutes, and definitely I will cover my topic in 5 to 10 minutes. तो टुडे माय टॉपिक इज वर्तमान समय में गांधीवाद या गांधीयन जो दर्शन है उसकी प्रासंगिकता क्या है। आज हम देख रहे हैं कि कोविड का टाइम है और पूरे वर्ल्ड में जहां आर्थिक मंदी है, देश के अंदर हाथरस जैसे कांड हो रहे हैं और ड्रग्स के मामले में आज सोसाइटी में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मूल्यों का जो ह्यूमन बीइंग के वैल्यूज हैं उनका डिक्लाइन हुआ है और पूरा वर्ल्ड एक बाजारवाद जिसको हम कहेंगे उसकी दौड़ में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। तो जब ह्यूमन वैल्यूज डिक्लाइन हो रही है तो ऐसे समय में गांधी की प्रासंगिकता अपने आप में ही बढ़ जाती है। तो गांधी के विचारों को अपनाने के लिए कोई हमें जैसे टोपी धोती पहनने की या कोई ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रियल सेंस में गांधी जी को अपनाने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी, हमारे अंदर आत्मीयता का भाव, ऐसी चीजों की आवश्यकता है। गांधी जो दर्शन को की आवश्यकता के लिए सकारात्मकता और आत्मीयता का भाव होना बहुत जरूरी है। गांधी है क्या, गांधीवाद है क्या? शोषण का अहिंसक प्रतिरोध गांधीवाद है, दूसरों की सेवा गांधीवाद है, संचय से पहले संचय नहीं करना, संचय से पहले त्याग करना, झूठ नहीं सच कहना, अपने बजाय देश समाज दलित की चिंता करना, रियल सेंस में यही गांधीवाद है। आज समाज में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी और धोखा, चालाकी, लालच, संकीर्णता, स्वार्थपरता जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पूरे विश्व के देश जहां शस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए देख रहे हैं कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आज हम एक छोटे से वायरस को सभी देश मिलकर के कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वायरस, कोरोना वायरस को सभी देश कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सभी देशों में एक प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियारों को वो कैसे इकट्ठा करें। सो आज का जो टाइम है वो क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज बहुत ज्यादा गिर गई है। हम सभी जानते हैं कि कोविड जो है एक नेचुरल वायरस नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल वायरस है। तो इसलिए गांधी की आज समाज में, उनके दर्शन की आज समाज को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म कोई आडंबर या प्रथाएं नहीं है, बल्कि धर्म एक आचरण है जो हमारे आचरण में होना चाहिए। उन्होंने धर्म विहीन राजनीति को मृत्युजाल कहा है। उन्होंने कहा है कि जो साधन और साध्य हैं दोनों की वो प्योरिटी की बात करते हैं, दोनों में शुद्धता की बात करते हैं। साधन और साध्य एक बीज और पेड़ की तरह है। कभी भी एक दूषित बीज एक अच्छा पेड़ नहीं बन सकता है। हम जैसा डालेंगे वैसा ही हम पाएंगे। गांधी जी के विचारों पे हम देख सकते हैं कि भगवत गीता का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, बाइबल का, गोखले का, टोल्स्टॉय और जॉन रस्किन का बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और टोल्स्टॉय की एक बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और एक जॉन रस्किन की बुक थी अनटू
द लास्ट। उन्होंने उसमें पाया कि सर्वोदय को अपने जीवन में उतारा। सर्वोदय मतलब सबका उत्थान, समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। जब गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें छुआछूत उन्मूलन की उन्होंने बात की, ग्राम स्वराज की उन्होंने बात की, डिसेंट्रलाइज की, विकेंद्रीयकरण, पंचायतों की उन्होंने बात की। आज जो हम एनईपी में देख रहे हैं कि शिक्षा का जो है वो किस उसमें होनी चाहिए, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो वहाँ की लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। ये गांधी ने आज से 50 साल पहले कहा। स्वदेशी भाषा, स्वदेश भाषा की उन्होंने बात की, परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान की उन्होंने बात की। निष्क्रिय प्रतिरोध में वो कहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक ऐसी चीज है जिसमें कठोर से कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। गांधी जी मानते थे कि आत्म बल ज्यादा जरूरी है शारीरिक बल से। शारीरिक बल से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति का आत्म बल है, और ऐसा अन्ना हजारे ने अपने मूवमेंट से पूरे भारत में इस बात को सिद्ध भी कर दिया था। सर्वोदय की वो बात करते हैं, सबका उत्थान, सबकी प्रगति। आज विश्व में ऐसे समाज, विश्व आज एक ऐसे समाज की खोज में है जहां शोषण नहीं हो, वर्ग ना हो, जाति ना हो, इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं हो। पूरे हमारे नेबर कंट्रीज में रोहिंग्या का देख लें, सिया सुन्नी का देख लें, हजारा कम्युनिटी का देख लें, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है। तो गांधी जी इन सभी प्रकार की हिंसाओं पर रोकथाम के लिए गांधी दर्शन की आज आवश्यकता है। गांधी कहते हैं प्रकृति का दोहन करें, शोषण ना करें, स्वदेशी को बढ़ावा दें, अपने देश में निर्मित कुटीर उद्योगों की उन्होंने बात की। सबसे बड़ी बात ट्रस्टीशिप की उन्होंने बात की कि ट्रस्टीशिप को कहा कि वो एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है, समाज की चीजों पर सबका नियंत्रण है। और आज पूरे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी जो हैं, आज भारत की जो अप्रोच है, भारत की सांस्कृतिक विरासत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड को मैनेज किया जा सकता है। कोल्ड वार में जहां एक तरफ यूएसएसआर ने अपना रूप दिखाया, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसए ने लगभग दुनिया पे 70 साल राज किया, लेकिन आज यूएसए भी डिक्लाइन मोड पे है। तो कहीं ना कहीं जो डंडे वाली जो पॉलिटिक्स थी वो कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही है। वैक्सीनेशन मैत्री की बात कर रहा है इंडिया आज, अफगानिस्तानियों की सहायता की वो बात कर रहा है, सभी का साथ देने की वो बात कर रहा है, विश्व कल्याण की वो बात कर रहा है। तो गांधी आज भारत की विदेश नीति में भी कहीं ना कहीं सार्थक है, दिखते हैं। गांधी को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है, उनके विचार सदा जीवित रहेंगे, उनका दर्शन वो अमर है, और इसी दर्शन पे चल करके विश्व का कल्याण हो सकता है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। अब मैं जो नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्ण जी हैं, ये विभागाध्यक्ष हैं मंडी गोविंद में शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी में। प्लीज आप अपने शोध पत्र से संबंधित अपने विचार रखें और 5 मिनट की लिमिट का ध्यान रखें सर, प्लीज। डॉक्टर कृष्ण जी। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर प्रवेश जी। First of all, I would like to congratulate all the organizing and patrons of this webinar, national, and as instructions given by Dr. Parvez ji, so I will conclude my topic within 5 minutes. My topic is that conflict resolution, a Gandhian perspective, because Gandhian method is totally different from the other methods. And if you go to history, so we will find that like in 19th century and 20th century, after Marx, if Marx talked about revolution and divide the society on the basis of material and present
a revolutionary method to remove all problems. On the other hand, Gandhi presented a unique method which is based upon peace. This is very unique because if we want to resolve a conflict with power, that is not possible that conflict be resolved properly. If this type of activity happen, so the world will become peaceful. After the First World War, Second World War, even it is stated that every day in the world, any place, a war is happening and many people involved in this war. But Gandhi realized that if we want to resolve conflict, then we should believe in peace. And he described the cause of conflict. That was very unique. Otherwise, Marx, Kautilya, Machiavelli, Plato, Aristotle, this described the cause of conflicts very different. Like that Kautilya, it is a struggle for power and for state. The same thing is described by Machiavelli. Marx described this is the class conflict. But Gandhi stated when a person, a family, a village, a state use unfair means to fulfill their targets, their aims, then a conflict started in society, in family, even in the personality of an individual. Because he believed that everybody is good by birth, by nature. But as time to time a person grow in society, then something will happen, bad experience with the person, and then the person also use some unfair means, and these unfair means cause a conflict. I will give an example of like that the Indian freedom struggle. When we were fighting for the freedom struggle, then Congress and some other political parties also working for the freedom struggle. But Gandhi made Congress as a mass political party. But later on, due to internal politics, Congress also divided. And later on, like that in Jinnah and Muhammad Iqbal, also firstly they believed in Congress. Because Iqbal wrote, "Sare jahan se acha ye Hindustan hamara, hum bulbule hain isko ye gulsita hamara." So firstly he believed in India. Even Jinnah also believed in Congress, but later on a conflict, and then they departed their aim and demand another nation, a different nation, and that's why Indian colony partitioned, India and Pakistan. And Gandhi's very accurate analyzing regarding conflict that violence generate more violence. अच्छा ऐड करते हैं सर. He believed that if you want हाँ जी वो भेज दो any सर. type of violence to resolve करें ना आप दोबारा. that means we will not dissolve that conflict. Even we will put some causes of another new conflicts. Here I want to put example of Al-Qaeda, रिक्वेस्ट भेज दो सर आप. Saddam Hussein. हाँ जी रिक्वेस्ट. After 9/11, America रिक्वेस्ट भेजो सर. controlled a war between Iraq and America, and America that time used
the power and think that we had resolved this conflict. But later this conflict come in new shape. ISIS, Islamic State for Iraq and इतना बड़ा नुकसान है, इतना जबरदस्त वेबिनार, and 500 still लोग बाहर today उनको बोलो a number of सभी को कह रहा हूँ, groups सभी को कह रहा हूँ मैं तो doing violence in world because if America using power that means it disturb फिर भी नहीं करनी चाहिए a number of families, a number of societies, a number of मैंने बोला है कोई मिल कोई बोलना मैं सब so here Gandhi's method is very unique because firstly they want we should use to resolve a conflict वो रिक्वेस्ट भेजो ना सर, तब हमारे पास आएगा तब अलाउ करेंगे prayer then agitation ज्वाइन तो करो सर and lastly if any conflict will not be resolved by using these all methods then Gandhi stated we should hijrat from that place because if we will go from that place that means that conflict resolve itself. So in the end I want to conclude my topic that if we want to peace in the world for a permanent and our generations will work a peaceful environment then we should follow the Gandhian methods of conflict resolution and these methods based upon only truth, non-violence, satyagraha, love, sacrifice and believe in post. So thank you so much the organizing and JMN College, Oscar and all organizers of this seminar who provide me opportunity to speak in this webinar. Thank you sir. थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू। अब मैं सीधे डॉक्टर कबीर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएं और अपने विषय से संबंधित विचार रखें। डॉक्टर कबीर जी असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री में कार्यरत हैं। डॉक्टर कबीर। नमस्कार सभी को, शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के आयोजकों JMN कॉलेज अंबाला व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कर विभिन्न शोधकर्ताओं को अपने अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। और मैं यहाँ पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, विषय तो है गांधी जयंती का, विषय तो है अहिंसा दिवस का। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये वेबिनार जो है राष्ट्रीय ना होकर एक अंतर्राष्ट्रीय बन पड़ा है, क्योंकि इसका विषय ही अंतर्राष्ट्रीय है। वैसे तो मैं अंग्रेजी में प्राध्यापक हूं, परंतु मेरा एक विचार था कि गांधी के विषय में कि गांधी जो हैं विश्व की ऐसी धरोहर है जिन्होंने न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में ही अपने उन विचारों से लोगों को अवगत कराया है जिनके नक्शे कदम पर अगर हम चलें तो पूरे विश्व में सिर्फ शांति होगी और सिर्फ शांति ही होगी। मेरा जो विषय है वो गांधी और विश्व शांति है। डॉक्टर परवेज जी कोऑर्डिनेटर जो हैं इसके वेबिनार के, डॉक्टर राजपाल प्रिंसिपल जी, RS यादव जी, आशु जी और कन्वीनर जो है राकेश कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए। आज शायद हम जो इस वेबिनार को कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें अपने आप को समझना होगा, हमें अपने आप को बताना होगा कि जो गांधी इस देश में पैदा हुए,
और इस देश में पैदा होकर वो पूरी दुनिया के हो गए। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया आज उनका गुणगान करती है, उनका नाम लेती है, उन पर शोध करती है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही करती है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सिर्फ 3 ही शब्द थे वो, जिन पर गांधी जी का पूरा विचार, पूरा जीवन समर्पित है, जिसको उन्होंने आत्मसात किया: सत्य, अहिंसा और शांति। ये सिर्फ 3 वो शब्द हैं जिनको गांधी जी ने एक बार चुना तो था, परंतु हमने ये बात अवश्य सुनी होगी कि कहते हैं कि शब्दों से हमें ऊर्जा मिलती है, शब्द हमारे जीवन में ऊर्जा का निर्वहन करते हैं। परंतु हमें ऐसा लगता है जैसे गांधी जी ने इन शब्दों को चुनकर इन शब्दों में ही ऊर्जा भर दी। ऐसा गांधी जी का व्यक्तित्व है, ऐसे गांधी जी का व्यक्तित्व है, और हम उन्हीं से प्रभावित होकर, अगर आज हम देखें, व्यक्ति, विश्व और शांति, इन तीनों में एक ऐसा गहरा परस्पर अंतर संबंध है जिसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। हमें उसको मानना ही पड़ेगा, उसको अपनाना ही पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऐसा विश्व नहीं करता है, जो आज ये विश्व शांति की ओर टकटकी लगाए देख रहा है ना, कि शांति कैसे मिले, कहां से मिले और कब मिलेगी, लगता नहीं है उसको शांति मिलेगी। विश्वास नहीं होगा इस विश्व को। और डॉक्टर प्रवेश जी ने भी कहा है अभी कि संयुक्त राष्ट्र के एक अधिवेशन में, अभी जो हाल ही में हुआ, मोदी जी ने एक वक्तव्य रखा था। उन्होंने उसमें एक बात और कही थी कि जो आज ये वर्तमान पीढ़ी सामने जो हमें दिखाई दे रही है, जो हम ये सोचते हैं कि इस धरती पर हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार है, हम ये क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं जानते कि हमने ये भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उससे हमने इसे उधार ही लिया हुआ है। हमें इसको जानना नहीं चाहिए? क्या हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है? अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम इसका फिर वो कई स्कॉलर्स ने, कई प्रोफेसर्स ने इस बात को रखा है कि हम इसका फिर दोहन नहीं, हम इसका शोषण ही करते रहेंगे। और अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि धरती जो है, विश्व की तो हम, दुनिया की तो क्या बात करते हैं, लोगों की तो क्या बात करते हैं, हम धरती को ही नहीं बचा पाते। जब हम बचेंगे तो देखा ही जाएगा, शायद ये पृथ्वी ही ना बचे, धरती ही ना बचे, संसाधन ही ना बचे इस पर। और गांधी जी के बारे में तो क्या बात करें, वो तो एक ऐसा विचार था जो व्यक्ति के रूप में तो शायद पैदा नहीं हुआ था। अगर हम कहें आज उनकी 152वीं जयंती पर जो विश्व शांति दिवस मना रहा है, अहिंसा दिवस मना रहा है, गांधी जयंती मना रहा है, हम तभी न्याय कर पाएंगे जब उसको जो एक विचार जो वो पैदा हुआ था, जिसको हम व्यक्ति न मानकर उसको आत्मसात करेंगे, उनके दिए हुए उन रास्तों पर चलेंगे जो शायद कभी खत्म ही ना होंगे, वो कभी खत्म ना होंगे रास्ते हमें। और मैं एक बात कहूंगा जरूर, देखो, अशांत व्यक्ति से अशांत समाज, और अशांत समाज से अशांत देश, और अशांत देश से अशांत दुनिया का ही निर्माण होगा। तो हमें समझने की जरूरत है शांति के उस दूत को, शांति के उस पुजारी को, अहिंसा के उस पुजारी को, जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसी धरोहर दी है जिसको हमें शायद अपने जीवन में आत्मसात कर कर उसकी विभिन्न छोटी छोटी सी संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऐसी छोटी छोटी सी शांति संस्थाएं स्थापित की जाएं और पूरे विश्व में उसका एक इतना प्रचार और प्रसार करें कि वो जो गांधी है, जिसको हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, परमपिता पूज्य कहते हैं, पूज्य बापू जी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, उसको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। और मैं तो इस जो ये वेस्टर्न थॉट्स जो हैं, जो पश्चिम का जो एक विचार है, उस पर एक जरूर बात कहना चाहूंगा और फिर विराम दूंगा अपनी वाणी जी को। प्रवेश जी, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, एक क्षण और बोलने दें मुझे। जो पश्चिम का जो विचार है, कहते हैं इफ यू वांट पीस
बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप युद्ध के लिए तैयार होंगे ना, तो आप अपने यहाँ तो शांति न कर पाएंगे, आप अपने आसपास के क्षेत्रों को भी अशांत कर देंगे। आपको हथियार बनाने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, तो शांति कैसे होगी? हमारी इस धरती पर तो एक ही विचार चलता है, अहिंसो परमो धर्म, शांति ही सबसे बड़ा धर्म। यहाँ पर तो यही विचार होगा, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर फॉर पीस। अगर शांति चाहते हैं तो शांति बनाए रखिए। मैं अपने विचारों को विराम दूंगा और इतना ही कहूंगा, महात्मा गांधी जी की इस जयंती पर मेरा सभी को नमन है। डॉक्टर प्रवेश जी, धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद कबीर जी। वैसे समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि पेपर प्रेजेंटेशन की लिस्ट काफ़ी लंबी है और ऐसा मेरा मानना है कि जैसा कि प्रोफेसर यादव को हमने सुना, मैडम आसु प्रसीजा जी को सुना, मैडम दीपिका जी ने अपने विचार रखे हैं और प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने अपने विचार रखे, और जितने भी गांधी से संबंधित शोधार्थी थे सभी ने अपने विचार रखे हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम लिमिट का हमें ध्यान रखते हुए हम जो है इसको अभी कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं शर्मा सर आपसे अनुमति चाहूँगा इस चीज़ की कि जिस संस्था के प्रयास से ऑस्का के माध्यम से हम 3 संस्थाओं को जोड़ने में सफल हुए हैं, मैं सभी प्रतिभागियों से भी ये 2 मिनट के लिए आप ऑस्का की एक छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि आप ऑस्का के बारे में भी जान पाएँ कि ऑस्का है क्या, कि आप सभी जो हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद है इस सेशन को जो है कंक्लूड करेंगे। कभी यहाँ ही नहीं रही मोबाइल में देखो, आवाज आ रही है इसको यार, इतना चली लेगी। यहाँ देखिए आगे, अरे मोबाइल में देखो ना यार, इसमें नहीं आएगी यार, इसमें नहीं आएगी, इतना फीस नहीं होगा, इतना जोड़ेंगे 2 मिनट की तो वीडियो, इसको कम कर दो। जिसकी संवैधानिकता पूर्णतः विश्वसनीय है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में संस्कृति, संस्कार और कला का योगदान होता है, क्योंकि संस्कृति संस्कारों का ही आधार होती है। उससे ये भी कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृति और संस्कारों के परिवर्तन के लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, जो भविष्य के लिए इन सबको एक वांछित वातावरण प्रदान कर सके। यही वांछित वातावरण ओस्का द्वारा अभी से बहुत गंभीरता के साथ देश के छोटे बड़े क्षेत्रों में इसके कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही पूर्व नियोजित योजनाओं के तहत किया जा रहा है। विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। ओस्का पूरे भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य कला, लोक परंपरा, कला प्रदर्शन, चित्रकारी एवं लेखन के द्वारा भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण का कार्य भी कर रही है।
इसी के साथ समय समय पर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी ओस्का निरंतर प्रयत्नशील है। ओस्का विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल यौन शोषण आदि को कम करना, उनकी संभावित स्थितियों को पैदा होने से रोकना, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जल संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल स्वच्छता सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के प्रति पूरे भारत में सामाजिक जागरूकता और जन जागरण का कार्य कर रही है। ओस्का के इन राष्ट्रव्यापी कार्यों की सफलता एवं निरंतर गतिशील सक्रियता को देखते हुए विभिन्न राज्यों के महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों की ओर से समय समय पर इसे विभिन्न प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। वैश्विक कोरोना महामारी में भी ओस्का ने अपने सामाजिक जन कल्याण के कार्यों को जारी रखते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन, दवाइयां तथा प्रवासी मजदूरों के लिए भी यथासंभव सहयोग प्रदान किया है। इसके साथ ही शैक्षणिक पर भी समय समय पर वेबिनारों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम किए गए ताकि कोरोना महामारी के कारण लक्षण तथा सुरक्षा के उपायों के प्रति आम लोगों के साथ साथ राज्यों को भी जागरूक किया जा सके, ताकि विश्व स्तर पर आयु महामारी से अमूल्य जीवन को बचाया जा सके। सामाजिक जन जागरण बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर संगीत के कार्यक्रम, लोक एवं लोक संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित करवाकर स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर के मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को निखारना आदि। निष्कर्ष रूप से यह संस्था लगातार देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए अपने देश के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी निष्ठा और संकल्प हेलो, आवाज सुन पा रही है तभी? हाँ जी प्रवेश जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो जैसा कि एक छोटा सा प्रयास था कि ओस्का है क्या और उसका किन किन क्षेत्रों में जो है वो कार्य करता है, तो जितने भी प्रतिभागी हैं मैं सभी से और कहना चाहूँगी कि अगर आप ओस्का के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो oscaindia.com पे जाके आप इसके विषय में जान सकते हैं और ओस्का से आप जुड़ सकते हैं। अब मैं गोपाल कृष्ण शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो ये जो टेक्निकल सेशन था वो जो है कंक्लूड करें। जी शर्मा सर। थैंक यू प्रवेश। आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है? जी सर, जी जी। सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा प्रवेश, तुमको तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो यहाँ से जाने के बाद, और तुम्हारी संस्था के वीडियो से ही मालूम हुआ कि छोटे छोटे बच्चों में अलग अलग एरियाज में कोविड में कल्चरल तरीके से उनकी चेतना जगाने के लिए सारा अभियान आपने चला हुआ है। तो पहले तो मैं वीडियो पर अपनी टिप्पणी ये कहूँगा कि आपकी भूमिका सराहनीय है, और तुम जानते हो कि मुझे खुद भी इन सब चीज़ों में टोटल जिंदगी अपनी ने इन्वॉल्व की है। याद दिलाना चाहूँगा कि 14 सितंबर 2007 को जो मेरा जन्मदिन होता है, चतुर्दशी भी थी उस दिन, 19 साल में मौका आता है कि आपकी तिथि और अंग्रेजी तिथि एक ही दिन हो। 1400 पेड़ मैंने अपने कैंपस में लगाए थे, ये सोच के मैं जिंदा रहूंगा 2026 में उन पेड़ों को देख पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि 5 साल बाद मुझे पेड़ देखने को मिलेंगे जो बड़ा आकार ले चुके हैं, और मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी के रूप में खुशी होती है कि वही अभियान, उसी तरह के अभियान सारे प्रवेश कुमार यहाँ कुरुक्षेत्र में तुम कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, ये गांधी के संदर्भ में 4 वक्तव्य यंग स्कॉलर्स के अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करते हुए सुने मैंने। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो लोग गंभीरता से गांधी के चिंतन पर यकीन करते हैं
इसलिए उन्होंने ये मुद्दे अपने रखे अपने तरीके से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, गांधी एक विराट पक्ष है जीवन का, जीवन के किसी भी एंगल पर उन्होंने विचार किया है। वो 7 सेंस की बात करते हैं अक्टूबर 25 को, 22 तारीख को, कौन कौन से 7 पाप हैं सामाजिक। आप ये देख रहे हैं सारी दुनिया उन 7 पापों में डूबी हुई है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट वर्थ, तमाम मुद्दे, मतलब सारी दुनिया में, साइंस विदाउट मॉरलिटी, सारी वही चीजें। अब देखिए कि इस देश के विचारक से प्रभावित होकर एक 16 साल की लड़की, आप सब जानते होंगे इस बात को, ग्रेटा थनबर्ग नाम आपने सुना होगा, स्वीडिश बच्ची का, वो वहां पर्यावरण के संकट पर 15-16 साल की उम्र से विचार कर रही है। और विचार ही नहीं कर रही बल्कि वो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष को डांट रही है एक तरह से। वो नाराज हो रही है कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी से सब कुछ छीन रहे हो। ये बात गांधी जानते थे, इसीलिए आप जानते हैं कि इस दौर में 4 पीस क्राइसिस, चाहे वो पीस को लेके है, चाहे पॉवर्टी को लेके है, चाहे पोल्यूशन को लेके है, चाहे पॉपुलेशन को लेके है, इन सारी भयानक बीमारियों का उपचार जिस विराट गांधी ने हमें सुझाया था, जैसा कि आपके वक्ताओं ने भी कहा, गांधी व्यक्ति नहीं, विचार थे, आदर्श थे। वो एक थिंकिंग प्रोसेस थी, एक ऐसी पर्सनालिटी जहाँ शब्द और कर्म का गैप खत्म हो जाता है। खुद कहा करते थे, मैंने कोई चिंतन नहीं दिया, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो एक ऐसे व्यक्ति पर आज हम 152nd एनिवर्सरी पर हम बात कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है, गुजरात की धरती गांधी का कर्म क्षेत्र रही है। मैं वर्तमान गुजरात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती पर जहाँ महाभारत हुआ है, वहाँ गांधी के शांति संदेशों की चर्चा हो रही है। यंग स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, प्रवेश कोशिश कर रहे हैं, उनके गुरुदेव ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया उसके पहले वाले सत्र में। मुझे खुशी होती है इस बात की कि इस विराट व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ते हुए आपके यंग स्कॉलर्स ने, चाहे नवीन जी हो, चाहे विश्वजीत हो, चाहे रमेश जी हो, चाहे कृष्ण जी हैं, सबने अपने तरीके से अपनी बात रखी है। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जिसे भुलाने की कोशिश हो रही है, उन तमाम मूल्यों को भुलाने की कोशिश हो रही है, शायद कोशिश हो रही है। कोई संदेह, नाम नाटक के लिए लिया जाता है, नाम केवल अभिनय करने के लिए आता है। यू कैनॉट थिंक इंडिया विदाउट गांधी। अरे दुनिया के बारे में हम नहीं सोच सकते बिना गांधी के। तो मुझे खुशी है प्रवेश कि इन चारों वक्ताओं ने अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करते हुए गांधी के बारे में बात की है। उसके पहले के सेशन में भी, और मुझे अवसर मिला बाय द वे तुम्हारी सूचना के माध्यम से, मैं स्वतः ही जुड़ गया, क्योंकि मुझे जुड़ने के लिए किसी के आग्रह की आवश्यकता नहीं होती, सूचना ही काफ़ी होती है। मैं तुम सबको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर तीनों संस्थाओं को जिन्होंने मिलजुल कर एक वेबिनार करते हैं, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं वो दौर भयानक दौर है और निकल रहे हैं उस दौर से बाहर आना है। और फिर ऐसे दौर आएंगे, बार बार आएंगे, हमें डर लगता है। यदि हम गांधी की बात आज भी मान लेते हैं, यदि वो जो लिप्सा है पूरी दुनिया पर कब्जा करने की लिप्सा, पूरी दुनिया पे एक आदमी पूरी दुनिया पे कब्जा किए हुए अपने प्रेम के संदेश के माध्यम से, अहिंसा के संदेश के माध्यम से, कोने कोने में उसका सम्मान है पूरी दुनिया के, वो तरीका ज़्यादा बेहतर है दुनिया में अर्जित करने का, प्रभाव अर्जित करने का। युद्धों की सामग्री से, अणु और परमाणु विस्फोटों से इन सबका कोई समाधान नहीं है। समाधान केवल पीसफुल तरीकों से है, समाधान केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के है, जैसा गांधी बार बार कहा करते थे। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ अपने से जोड़ा, इसकी बधाई दूंगा। और तुम्हारी गतिविधियों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि उसका निरंतर काम करके राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को बात के कुछ इंगेजमेंट्स के कारण समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सभी प्रतिभागियों के लिए सूचना के अभी 5 मिनट बाद हम फीडबैक लिंक डाल रहे हैं, और उससे पहले एक आवश्यक सूचना और है सभी के लिए कि इस वेबिनार की जो प्रोसीडिंग है उसमें हम उसको हम पब्लिश करेंगे ISSBN नंबर के साथ। और हमने उसके लिए 20 अक्टूबर की जो है वो डेट रखी हुई है कि बहुत सारे पेपर आए हैं, एब्स्ट्रैक्ट आए हैं। आप जो भी शोधार्थी आप अगर पेपर अपना भेजना चाहते हैं, फुल लेंथ पेपर जो है वो आमंत्रित हैं। 20 अक्टूबर तक आप जो ऑस्का की जो हमने वेबिनार की जो ईमेल आईडी दी आप उस पर भेज सकते हैं। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र चावरे जी को आमंत्रित करूंगा के लिए। वीरेंद्र जी। थैंक यू डॉक्टर परवेज, थैंक यू वेरी मच।
सर्वप्रथम मैं इस नेशनल वेबिनार के मुख्य वक्ता परम आदरणीय प्रोफेसर आर.एस. यादव, फॉर्मर डीन एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और निश्चित रूप से हम सभी आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। साथ ही इस नेशनल वेबिनार की रिसोर्स पर्सन परम आदरणीय मैम डॉक्टर आशु पसरीचा मैम, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार कर जो है अपने व्याख्यान से जो है हम सभी को जो है लाभान्वित किया है। साथ ही परम श्रद्धेय गुरुवर मैम प्रोफेसर दीपिका गुप्ता मैम, इस वेबिनार की पैट्रॉन डीन सोशल साइंस एंड चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस विक्रम यूनिवर्सिटी, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके वक्तव्य से जो है हम लाभान्वित हुए हैं और आपके प्रयासों से ये जो वेबिनार जो है वो सफल रहा है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर गोपाल शर्मा सर, पूर्व अध्यक्ष गांधी स्टडी सेंटर और पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत आभारी हूं। और ये इस बात को रेखांकित करता हूं मैं कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए जो है वो हमेशा सम्माननीय है। हम आपके साथ अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस वेबिनार के चीफ पैट्रॉन एंड फाउंडर ऑफ ऑस्कार डॉक्टर धर्मपाल जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयासों से ये जो सेमिनार जो है या वेबिनार जो है वो आयोजित हो सका। मैं आभारी हूं आदरणीय डॉक्टर राजपाल सिंह प्रिंसिपल जीएमएन कॉलेज का कि आपके सहयोग के बिना जो है ये वेबिनार जो है वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन आपके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम जो है संभव हो सका। इस वेबिनार की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसके जो है कन्वीनर जो है डॉक्टर राकेश कुमार, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर परवेज कुमार का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रपाल पूनिया जी का जो है आभारी हूं कि आप सभी की वजह से जो है हम पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से जो है प्रतिभागियों को जो है वेबिनार में जोड़ सके। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आभारी हूँ गांधी मेमोरियल नेशनल पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट हरियाणा का। मैं आभारी हूँ इन कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस ओस्का का एंड स्कूल ऑफ स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का, कि ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को जो है वो बहुत आगे बढ़ाया और ये सफल आयोजन रहा है। साथ ही एडवाइजरी बोर्ड की डॉक्टर अंजू जैन, डॉक्टर वीके जैन, डॉक्टर एस नैन, डॉक्टर किशन कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर कुलदीप पुनिया, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर रमेश धारीवाल, डॉक्टर सज्जन सिंह, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर विनोद कौशिक, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप गहलोत और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर मिस्टर श्याम रहेजा का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार का बहुत बहुत आभारी हूँ और पेपर जिन लोगों ने पढ़े हैं मैं उनमें डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर किशन कुमार, डॉक्टर कबीर, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने रिसर्च पेपर जो है पढ़े और एक अच्छा जो नॉलेज हमको देने की कोशिश की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान दिया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मेजर बुद्धदेव सीनियर पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें मैंने नाम देखा उनका, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। असम से जुड़ी डॉक्टर अनीता शर्मा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के समस्त फैकल्टी मेंबर जो हैं, जिनमें डॉक्टर नलिन सिंह पंवार, डॉक्टर मेघा पांडे, डॉक्टर कन्या मेहरा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर उमा शर्मा, डॉक्टर शिव कुशवाहा, डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर वंदना पंडित, साथ ही हमारे विक्रम विश्वविद्यालय की बीए, एमए और पीएचडी के विद्यार्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागी जो लगातार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात और रेखांकित करना चाहता हूं यहाँ पे कि मुझे लगता है कि 600 से 700 के लगभग जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैं उन सभी 600-700 प्रतिभागियों का दिल से और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू परवेज जी। थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू। अभी हम फीडबैक जो है वो हमने डाल दिया है, आप सभी फीडबैक भरें और आपको जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मेल के माध्यम से जो है वो मिलेगा। माइक ऑन करो परवेज, माइक ऑन करिए। डॉक्टर परवेज अपना माइक ऑन करें, स्पीकर ऑन करें। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू मैडम दीपिका, थैंक यू गोपाल सर। अभी डॉक्टर नैन जी धन्यवाद, जो कि जीएमएन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं।
और हमने फीडबैक डाल दिया है और सभी प्रतिभागी जो फीडबैक भरेंगे उनका सर्टिफिकेट उन मेल के माध्यम से उनको मिलेगा और आप सभी के जो शोध पत्र हैं वो भी आमंत्रित हैं अक्टूबर तक। तो अब हम सभी विदा लेंगे और मैं एक बार चाहूँगा कि आप सभी अपना एक वीडियो ऑन करें एक बार। देख रहे हैं सभी वीडियो ऑन करें ताकि हम एक फोटो ले सकें जो कि हमारे याद नहीं रहे कि इतना अच्छा वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। प्लीज सभी। डॉक्टर प्रवेश और डॉक्टर राकेश और सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सर आपका सेमिनार इतना सफल रहा, हम शब्द नहीं है। मैं सभी अपने साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। जी थैंक यू सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। हो गया। हाँ सर मेरी फोटो नहीं होगी। एक मिनट सर ऑन बहुत रखिए। बहुत धन्यवाद प्रवेश जी और आपको बहुत बहुत बधाई सफल आयोजन के लिए। मैम एक मिनट और प्लीज, एक मिनट रुकें सभी। सभी यार ये तुम्हारे मुंह का वीरेंद्र को बहुत दिनों बाद सुना मैंने, मजा आया, अच्छा लगा। बहुत अच्छा गुरुवर ने काफी डेवलप कर दिया आपको। थैंक यू सर, आपका भी सहयोग है उसमें। सर जी एक बार फोटो दोबारा लेना जी। अरे हो गया भैया, फोटो तो क्लिक करो एक बार ही ना। फोटो तो दीपिका का होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सर जी मेरा फोटो नहीं आया ना। सभी का धन्यवाद। आईटी सेल वालों की हेल्प ले लो, सब लगा देंगे वो। जी सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आशीर्वाद प्रवेश, बाय।